ایک اللہ والے اب وہ سن لو، پان کھانے کے لیے جاتے تھے دکان میں، تو 2-4-5 دن گئے نا پان کھانے کے لیے، تو پان والا پہچان لیا کہ یہ مولانا صاحب نا یہ پہنچا ہوا آدمی لگتا ہے، یہ جو دعا کرے گا نا وہ دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ تو وہ پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، شیخ میرے لیے دعا کر دیے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ کیا بنا دے؟ دوسرے دن پان کھانے کے لیے شیخ گئے، تو پھر اس پان والے نے کہا کہ شیخ دعا کر دیجئے میرے لیے، آج تو دعا کر دیجئے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تیسرے دن پھر پان کھانے گئے، پھر وہ پان والا بولا کہ حضرت آج تو دعا کر دیجئے میرے لیے، بولا جاؤ اللہ تم کو آدمی بنا دے۔ پان والا گرم ہو گیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، 3 دن سے آپ وہی دعا کر رہے ہیں اللہ تم کو انسان بنا دے، انسان بنا دے، انسان بنا دے، ہم انسان نہیں تو کیا جانور ہیں۔ پان والا گرم ہو گیا۔ تو حضرت بولا کہ بابو غصہ مت کرو۔ حضرت اپنے سر سے ٹوپی کھولے اور ٹوپی کھول کر پان والا کو پہنا دیا کہ لو پہنو۔ اور پان والا جو ٹوپی پہنا تو دیکھتا کیا ہے کہ کوئی مرغی ہے، کوئی کوا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی مینا ہے، کوئی طوطا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے۔ بولا بھیا یہ کوئی آدمی نہیں، یہ آدمی سب گیا کہاں؟ قربان جاؤ، آدمی سب گیا کہاں؟ جلدی سے ٹوپی کھولا، بولا حضرت یہ لیجئے۔ باپ رے باپ، بازار میں یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کیا پہنا دیا اب ہم کو؟ تو حضرت نے بولا کہ بابو یہ جو آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے کوئی مکار ہے، کوئی غدار ہے، کوئی چور ہے، کوئی بےمان ہے، کوئی جھوٹا ہے، اس لیے میں تیرے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ اللہ کے قرآن اٹھاؤ، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کا قرآن کہے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ رمضان کا مہینہ پا رہے ہو، کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، الحمدللہ ثم خوب جتنی نیکیاں بٹور سکتے ہو بٹور لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں۔ اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔
बम्बई जाते हो 1 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हो, कलकत्ता जाते हो 10 दिन पहले टिकट बुक करा लेते हो, दिल्ली जाते हो 1 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हो। क्यों? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई परेशानी ना हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बम्बई के लिए दिल्ली के लिए जाना हो 3 महीना 2 महीना पहले तैयारी करो। अब वहां जाना है, जहां जाकर नहीं आना है, वहां की तैयारी कब करोगे? वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो अमल करने की जगह है, तैयारी करने की जगह है। अल्लाह यहां तैयारी कर लो, फिर अल्लाह इनाम देगा। अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वहां की तैयारी करो। बाप मर गया, जमींदार था, हजारों बीघा का जमींदार था। बाप मर गया, ओ गुसल देने वाला आया, ए बाबू ये कहा बेचैन है, जो पोजिशन ठीक नहीं, जाओ जल्दी जाओ, एकदम ভালো করে বসবো। जमींदार मर गया, हजारों बीघा जमीन का मालिक है, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं। जमींदार मर गया, गुसल देने वाला कोई नहीं, बेटा गुसल देने को तैयार नहीं, बीवी गुसल देने को तैयार नहीं, भाई गुसल देने को तैयार नहीं। गुसल देने वाले को बुलाया गया, ओ पैसे पर गुसल देने वाला आया, तो नहलाने वाला आया, पानी नहीं रख दिया, तो मरने वाला बहुत अच्छा कपड़ा पहन के मारा था बेचारा। अरे पैसा वाला था तो अच्छे कपड़ा न पहनेगा, अरे बोलो भाई, तो कीमती कपड़ा था। तो गुसल देने वाला कुर्ता बटन खोलने लगा, तो मरने वाला का बेटा एगो कैंची लेके आया, बोला कि नहीं खोलिए मत, ये कपड़ा खोलिए मत, कैंची से काट दिए। खोल के क्या कीजिएगा? तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू कपड़ा बड़ा कीमती है, काहे काटोगे, बर्बाद हो जाएगा, खोल देते हैं, पहन लेना। तो उसका बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुसल देने वाले ने जवाब दिया कि मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का ये बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे बच्चों, नौजवानों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये मरने के बाद किसी का कोई नहीं, मरने के बाद किसी का कोई नहीं है। लोग 2-4 दिन नाम लेंगे, घर वाले 2-4 दिन तक नाम लेंगे, हफ्ता 10 दिन 40 दिन 2 महीने 6 महीने गुजरे और कुर्बान जाओ साल गुजर गया, कोई नाम लेने वाला तुम्हारा नहीं होगा। फिर तुम होगे, तुम्हारा अमाल होगा और कब्र की मंजिल होगी। अल्लाह का सवाल होगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया। इसलिए ये आखिरत की तैयारी करने की जगह दुनिया है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया आराम करने की जगह नहीं, ये तो आखिरत बनाने की जगह है। सुनो एक बात और बता दूं मुसलमानों, अररिया में जमीन खरीद लेना बहादुरी नहीं है। कितना आदमी कहता है 5 बीघा जमीन हमारा अररिया में, हमारा गांव जगह की फ्लैट खरीद लो, हमारा पटना में, दिल्ली में हमरो मकान छे, हमारा कोई दिक्कत छे। सुनो ये कामयाबी नहीं है, दिल्ली में महल बना लेना कामयाबी नहीं है, पटना में फ्लैट खरीद लेना कामयाबी नहीं है, अररिया शहर में जमीन खरीद लेना, मार्केट बना लेना मुसलमानों, ये कामयाबी नहीं है। तो फिर शायद कामयाबी क्या है, कामयाबी क्या है? तो सुनो, उलमा से पूछो, अल्लाह के कुरान से पूछो, हदीस से पूछो, तो जवाब मिलेगा कि मुसलमानों लोगों सुनो, कामयाबी ये है दुनिया में रह के आखिरत बना लेना, ये कामयाबी है। दुनिया में रह के आखिरत बना ले, ये कामयाबी है। लता मंगेशकर के पास दौलत की कमी नहीं थी। अरे लता मंगेशकर का नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलिए ना भाई, सुने कि नहीं सुने? लता मंगेशकर गीतकार है, गाना गाती है। ओहो, बेचैन हो गई, अमेरिका में मन नहीं लग रहा, लंदन में मन नहीं लग रहा, फ्रांस में मन नहीं लग रहा है,
लता मंगेशकर से किसी ने पूछा कि आखिर मन काहे नहीं लग रहा है। लता का कहना था कि मेरे पास आज दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अब ये दुनिया मुझे बेकार लग रही, अब ये दुनिया में मजा नहीं रहा, दुनिया में मजा नहीं रहा। मुसलमानों, ये दुनिया से दिल मत लगाओ, दिल लगाना है आखिरत से लगाओ, दिल अगर लगाना है कुरान से लगाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह आखिरत बनाओगे? कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कितने दुआ करेंगे? अरे जल्दी बोलो, कितने दुआ करेंगे? एक हजरत जो है जलसा में गए, तो एक लड़का बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया, तो हजरत बोला कि बाबू तुमने मेरी बहुत खिदमत की, क्या दुआ करे तुम्हारे लिए? बोला कुछ कर दिए। बोला अच्छा ठीक है, तुमको बच्चा चाहे? तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा। दूसरे साल हजरत जलसा में आए, वो लड़का फिर खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बच्चा चाह हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले कि चलो इस बार तहज्जुद में तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ। तीसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछ लिया बेटा बोलो अब बेटी हुई कि बेटा हुआ? बोलो। ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे हो सकता है? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा करे बेटा बियाह कर लो जो? बोले नहीं बियाह नहीं लो जो। बच्चा कहाँ होगा? हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हशर के मैदान की तैयारी, जन्नत में जाने की तैयारी, 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। आओ अजमत कुरान के लिए, शान कुरान के लिए और कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कल ये किताब, ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हुक्म से लोगों को, वो लोगों को जन्नत में लेकर दाखिल करेगा कुरान, जिन लोगों ने दुनिया के अंदर में कुरान का इकराम किया, कुरान का एहतराम किया, कुरान को सीने से लगाया, कुरान को पढ़ा है, उस पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारा है। कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा, अपनी दादी, अपने नाना, अपनी नानी के नाम पर? शाबानुल मुअज्जम का महीना है, आने वाला रमजान का महीना है, और कुर्बान जाओ ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक, कितना प्यारा नाम है, सहाबी रसूल, खलीफा अव्वल, ओ अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका के अब्बा हैं। और कुर्बान जाओ, इस मदरसे को बनाने वाला, इस मदरसे में ताउन करने वाला, मुसलमानों एक बात याद रखो, जमीन छोड़कर मर जाओगे, जमीन खेत छोड़कर मर जाओगे, पता नहीं बेटा उस जमीन का क्या करे ना करे, बीवी उस जमीन का क्या करे या ना करे, भाई उस जमीन का क्या करे या ना करे। ए मुसलमानों सुनो, ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक अगर बनाकर मर जाओगे ना, तो बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, भाई भूल जाए गम नहीं है। इंशाअल्लाह ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक जब तक रहमतपुर में चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला? अपना नाम पेश करो, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। एक बात याद रखो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल हजरत मौलाना नूरुल इस्लाम साहब के हवाले कर देना, कमेटी वाले के हवाले कर देना। है कोई ऐसा पहला सखी मर्द मुजाहिद? इंशाअल्लाह खामोश मत बैठो, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, इमारत वाला, जमीन वाला, दुकानदार, मकान वाला बैठा है। पहला कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत हम 5000 रुपए देने को तैयार है, मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब के नियत से इस मदरसे में 5000 रुपए देने को तैयार है इंशाअल्लाह। आमी दारिये दश्त दुआ करबो अपनार जन्ने, अल्लाहर कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है मेरा कोई प्यारा भाई
मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, पहला कोई मेरा भाई अपना नाम पेश करो, इंशाल्लाह 5,000 रुपए दिए दो। ये देखिए सईदुर रहमान, आगे जी, आगे जी, नारे तकबीर। अरे ऐसे नहीं भाई, हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई नाम लिखिए तो थोड़ा सा।